Very good morning, everyone. So now we are going to start next chapter of periodic test 2. So first of all, let me ask you few things from you. आपने physical features करे हैं ना? Physical features में आप मुझे बताओगे कि आपने कौन-कौन से physical features पढ़ लिए हैं? Write in the chat box. Physical feature किस किस ने पढ़ लिया, कौन कौन सा फिजिकल फीचर, पहले बताओ फिजिकल फीचर होते कौन से हैं? कैन एनीवन टेल? राइट इन द चैट बॉक्स. जितने भी फिजिकल फीचर आते हैं यू कैन. ओके, लेट मी आस्क फ्रॉम यू. दिस इज अ बॉय एकम सिंह. एकम सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल. Ma'am, physical features of India are northern mountains, Yes. desert, coastal plains, southern plateaus, plateaus and island. Okay. फिजिकल फीचर्स मीन्स टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेन एरिया है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, कोस्टल प्लेन्स है, आइलैंड है. ये सारे क्या आते हैं? फिजिकल फीचर्स इंडिया के. और कौन सा इनमें से आपने कर लिया हुआ है? यस, लोअर योर हैंड एकम. You have already given response. Arshpreet Kaur, unmute yourself. Yes, ma'am. Which physical features you have already done in PT1? Ma'am, northern mountains and ma'am, only northern mountains. Yes, northern mountains we have already done. So today we are to do the next physical feature, that is desert. Desert, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हम इसको बोलते हैं. इसका दूसरा नाम है थार डेजर्ट. So open your books. We are to start the lesson number 5, Great Indian Desert. Those students who have raised their hands, please lower your hands, Pity. If you have to ask something, you can use chat box. I am reading your chat side by side. अगर आपको कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स यूज करो. अदरवाइज वी आर टू स्टार्ट द चैप्टर ग्रेट इंडियन डेजर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द लोकेशन. लोकेशन मीन्स वो कहाँ पे है, कौन सा एरिया है जो इंडियन डेजर्ट जहाँ पे करता है. आशिमा बेटे, यूज चैट बॉक्स. Now see, we have already learned something. First blank is there. Based on your previous knowledge about the physical features of India, fill the missing words with the help of the given options. The dash mountains, कौन सी mountains हैं? Southern mountains हैं या northern mountains हैं? Write in the chat box. Okay, आशिमा, आशिमा अनम्यूट करो बेटी अपने आप को and tell the answer. Ma'am, question repeat करना. Dash mountains. Mountains are northern mountains or southern mountains? Ma'am, northern mountains. Northern mountains. Good. Very good. There are so many responses in the chat box. Very good. So next is northern plains and northern deserts and Vinisha, you tell. Unmute yourself. Unmute yourself. Northern plains. Northern plains. Very good. The Great Indian. It's desert
or plateau? Sukhveer Singh, unmute yourself. Ma'am, desert. Yes, desert. ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान का एरिया मैक्सिमम इसमें कवर होता है. वी विल लर्न अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल. सो नाउ here is who will read? Roll number 45, Ritman. Start reading the chapter, बच्चे. Those students who have raised hand, lower your hands, बच्चे. Ritman is there. Sukhveer, mute yourself. Okay, Ritman is not there. Then Dilpreet Kaur. Read the chapter, बच्चे. Pleasant feature of India. We will learn about the greatest India desert in his chapter. A desert is the largest area of India which is sand and is in very little or no rain. I think there is network issue at your side, bete. Stop reading. Stop reading, Dilpreet. Let me read for you. Of It's grow in no desert. Desert have either very high. In India, desert is located on the western side of the northern plains. It is called the Greatest India Desert or Western Desert or Thar Desert. okay, okay. Stop it now. Mute yourself. खुद को mute कर लो बच्चे. Okay. Of the three physical features of India mentioned above, we will learn about the great Indian desert in this chapter. अब desert होता क्या है? A desert is a large area of land which is covered with sand. Sand से ये cover रहता है and there is no rainfall or very little rainfall. ये एरिया जो है बहुत कम रेन रिसीव करता है, ना के बराबर यहाँ पे रेन होती है और रेन ना होने के कारण बहुत कम प्लांट्स, बहुत कम ट्रीज यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं. तो ऐसा एरिया जहाँ पर चारों तरफ सैंड होती है, बारिश नहीं होती है या फिर वहाँ ट्रीज और प्लांट्स जो है वो नहीं ग्रो करते हैं, ऐसी एरिया को डेजर्ट कहा जाता है. यहाँ पर या तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है या फिर बहुत लो टेम्परेचर है. हॉट डेजर्ट्स भी होती हैं, कोल्ड डेजर्ट्स भी होती हैं. And today we are to learn about the hot deserts. Clear? So next है location of desert in India. India में desert कहाँ पे है? West side. West side आपको directions पता है ना? West side जो है वहाँ पर थार डेजर्ट लाई करता है. इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं, वेस्टर्न डेजर्ट भी कहते हैं या फिर थार डेजर्ट भी कहते हैं. क्लियर? डू यू हैव एनी डाउट अप टू दिस? अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क मी. The Great Indian Desert mainly lies in the state of Rajasthan but stretches across some parts of Haryana, Punjab and Gujarat, extending up to Pakistan. It is bordered by Satluj River in the northeast, by the Indus River in the west, by the Aravalli Hills in the southeast and by Rann of Kutch in the south. Very good. Yes. Hmm.
आगे पढ़ो बेटे। Desert region. The region of the Great Indian Desert. Let me explain this. ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है इंडिया के वेस्ट में, अभी आपने मैप में स्टेट्स फिल करी थी ना, आपको हॉलीडेज होमवर्क में मैप फिल करने के लिए दिया था, तो उसमें आपने देखा होगा पंजाब के नीचे राजस्थान एरिया है. यू कैन सी फ्रॉम दिस मैप येलो पार्ट, दिस एरिया, यहाँ पर इंडिया का पूरा मैप दिया हुआ है. हियर आई हैव bigger map. This area filled with yellow color is Thar Desert या Great Indian Desert. It is mainly in Rajasthan. राजस्थान में है, बट इसका कुछ पार्ट जो है पंजाब और हरियाणा और गुजरात में भी लाई करता है. सो आई एम गोइंग टू शो यू दिस वे. सो इस अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है तो ये मीनिंग नहीं है कि वो सिर्फ राजस्थान में ही है. इसका कुछ पार्ट, पंजाब का जो पार्ट है, साउथ वेस्टर्न पार्ट एंड हरियाणा एंड इट आल्सो कवर्स गुजरात. तो ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, अब ये तो पाकिस्तान तक फैला हुआ है. ये बाउंड्री जो है, ये जो डार्क कलर में है ना, ये इंडिया है इस तरफ, ईस्ट की तरफ, और ये दिस साइड इज पाकिस्तान. सो पाकिस्तान में भी ग्रेट इंडियन डेजर्ट फैला हुआ है और सबको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते. रिवर्स की अगर बात करें तो सतलुज रिवर, आपको पता है ना फिलौर के पास से सतलुज रिवर निकलता है. तो सतलुज रिवर यहाँ से इसको बॉर्डर करता है, मतलब इसकी बाउंड्री बनाता है, और दूसरी तरफ वेस्ट वाली साइड पे इंडस रिवर, जिसको हम सिंधु रिवर भी कहते हैं, वो इसको बॉर्डर करता है. इसके बीच वाला जो पार्ट है साथ में वो वाला जो एरिया है अरावली हिल्स. अरावली हिल्स आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में अरावली हिल्स जो है दिस वे, ये सारी हिल्स जो है अरावली हिल्स है, ये राजस्थान में लाई करते हैं. ये ओल्डेस्ट हिल्स है इंडिया की. तो यहाँ पर ये एरिया जो है डेजर्ट एरिया है. और साउथ में रन ऑफ कच्छ, गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, यहाँ तक डेजर्ट. इज इट क्लियर? यू नो, अब उसकी लोकेशन आपको पूरा पता चल गई. अगर हम स्टेट वाइज देखें तो मेन पार्ट जो है वो राजस्थान है, लेकिन कुछ पार्ट्स पंजाब, हरियाणा और गुजरात में. अगर हम रिवर्स की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे सतलुज रिवर है और वेस्ट साइड पे इंडस रिवर के बीच वाला पार्ट जो है वो डेजर्ट एरिया में आता है. और साउथ ईस्ट में जो अरावली हिल्स है वहां तक ये फैला हुआ है, वहां से रन ऑफ कच्छ तक ये फैला हुआ है. होप ये सबको क्लियर हो गया. सो नाउ डेजर्ट रीजन. डेजर्ट रीजन नेक्स्ट Paramnoor. Next turn is Paramnoor. Please unmute yourself. बेटी जिसकी टर्न आ रही है ना वही हैंड रेज करें, अदरवाइज Paramnoor, raise your hand if you are here in the class. Otherwise, I will give chance to Kirat. No one is here. Paramnoor, I think 42 roll number. Okay, now let me give chance to someone else. Mayank, unmute yourself. Yes, Now ma'am. read.
Read it. Desert region. Desert region. The region of the Great Indian Desert is made up of loose sand and rocks. The loose sand is blown away by strong winds to form hills. These hills are called sand dunes. Strong winds are also called dust storms. Wait. So now let me explain what are sand dunes. यहाँ पे न्यू टर्म्स आई हैं, sand dunes and dust storms. Let me explain what are these. Storm आपको पता है तूफान आता है ना. कई बार आपने भी यहाँ पे किया, बहुत अंधेरी, इतनी फास्ट हवाएं चल रही होती है. अभी रिसेंटली भी आई थिंक ट्यूसडे को ऐसा हुआ था, है ना. देयर वाज अ बिग स्टॉर्म. तो क्या होता है, डेजर्ट एरिया में सैंड ही सैंड होती है, हर तरफ लूज सैंड होती है, रॉक्स होती है. तो ये सैंड हवा के साथ बहुत तेजी से एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पे उड़ती चली जाती है और एक तूफान का रूप ले लेती है. और इसमें धूल मिट्टी बहुत होती है, इसलिए इसको डस्ट स्टॉर्म कहते हैं. We call it dust storm. Winds जो है अपने साथ बहुत मिट्टी लेकर के उड़ते हैं और इस तरह से डस्ट स्टॉर्म्स बनती है. तो डस्ट स्टॉर्म्स जो है वो डेजर्ट में कॉमन होते हैं. फिर डस्ट स्टॉर्म्स हवा के साथ साथ चलते जाते हैं और एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पे इकट्ठी होती रहती हैं और वो हिल के रूप में, मतलब जमीन से थोड़ा सा ऊंचा ऐसा टीला सा बन जाता है, जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. सैंड ड्यून्स क्या होती है, छोटी सी हिल होती है जो कि किससे बनी होती है, रेत से, सैंड से. सैंड से जो बनी हुई छोटी सी हिल होती है जो कि हवा के साथ एक जगह पर बनती है, फिर हवा चलती है तो उस जगह से उठ करके दूसरी जगह पे उड़ करके चली जाती है. तो जो हिल बनती है सैंड से, उसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स. ओके. बहुत तेज हवाएं चलती हैं, मिट्टी एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पे पहुंच जाती है और छोटा सा हिल बन जाता है, इसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. क्लियर? इज इट क्लियर? So if you have any doubt up to this, no doubt. So now next मयंक की टर्न हो गई. Next I will ask from Pulkit Bansal. Will you speak? Unmute yourself, Pulkit. Good morning, ma'am. Good morning. Pulkit, you are from pink section or green section? Ma'am, green. Okay. Now read it, Pulkit. There is a scarcity of water in the desert. The river Luni is the only seasonal river that flows through the Great Indian Desert. There are areas in the desert where underground waters comes to the surface. These areas are called oasis. 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 Okay. Human settlements and villages are located near oases. Okay. Now let me explain. Here new terms. Two new terms are there. First one is seasonal river and other is oasis. Okay. So what are seasonal rivers? Seasonal rivers क्या होते हैं? The rivers which are filled with rain.
और रेन कभी सीजन में आती है ना, जब जब रेन आती है, रेनी सीजन आता है, तो ये रिवर्स पानी के साथ भर जाते हैं। अदरवाइज ईयर के बाकी मंथ्स में ये ड्राई रहते हैं, खाली रहते हैं। तो सीजनल रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जो सिर्फ मॉनसून्स में या रेनी सीजन में भरते हैं पानी के साथ, अदरवाइज वो ड्राई रहते हैं। तो सीजनल रिवर, ल्यूनी रिवर जो है वो यहाँ का सीजनल रिवर है। अदरवाइज यहाँ पे स्केर्सिटी ऑफ वाटर, स्केर्सिटी का मीनिंग है बहुत कमी है, पानी की बहुत कमी है, किल्लत है, लोगों को पानी लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है और उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, पानी दूर दूर तक नहीं मिलता उनको। सो इन दिस वे दे हैव टू गो टू फार अवे प्लेसेस टू फिल देयर बकेट्स ऑफ वाटर। आपने मूवीज में भी देखा होगा, तो इस तरह से पानी लेने के लिए उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है। और लूनी रिवर जो है वो भी सीजनल रिवर है, जब गर्मी होती है तो वो ड्राई होता है, उसमें पानी नहीं होता है और उनको लेने जाना पड़ता है दूर से। लेटर ऑन एक और टर्म आई है ओएसिस। कई बार क्या होता है डेजर्ट में अंडरग्राउंड पानी जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो सरफेस पे आ जाता है, जमीन पे आ जाता है। और इस एरिया पर जहां पर यू कैन सी फ्रॉम दिस पिक्चर ऑल्सो, चारों तरफ सैंड ही सैंड है और अंडरग्राउंड जो वाटर है वो सरफेस पे आ गया। तो लोग जहाँ पे पानी मिलता है लोग वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं, उसके आसपास ही घर बनाने शुरू कर देते हैं, उसके आसपास ही क्रॉप्स ग्रो करने शुरू कर देते हैं। तो ऐसे एरिया को ओएसिस कहते हैं। क्लियर? ओएसिस इज एन एरिया where underground water comes to the surface, जहाँ पे अंडरग्राउंड पानी जो है सरफेस पे आ जाता है और लोग जो है उसके आसपास ही रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे पानी मिल रहा होता है, वाटर इज अवेलेबल देयर, सो दे स्टार्ट लिविंग देयर और वहीं पर ही थोड़ी बहुत ही अपनी फार्मिंग शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ओएसिस जो है डेजर्ट में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर आ जाता है सरफेस। क्लियर? Rest of the things, climate and vegetation, we will do in our next class. So by now, अगर आपका कोई भी डाउट है, you can ask me your doubts. Sargun Aluwalia, you have raised your hand. Bete, do you want to ask something? I think she is not here now. So let me stop sharing the screen. If you have any doubts, you can ask me. Kanan has raised her hand. Kanan, unmute yourself, okay? Ma'am, meaning of oasis? ओएसिस बेटा एक प्लेस का नाम है, प्लेस होता है जहां पर अंडरग्राउंड वाटर, डेजर्ट के अंदर जो, डेजर्ट के अंदर अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर नीचे जो पानी होता है ना वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक, और सरफेस पे आने के कारण लोग जो है आसपास ही उसके रहना शुरू कर देते हैं, वहीं पे फार्मिंग करने शुरू कर देते हैं। तो ओएसिस एक ऐसा प्लेस है डेजर्ट में पानी सरफेस पे आ जाता है। नेक्स्ट Ekam, do you have any doubt? Unmute yourself and ask your doubt.